Starting. Okay, let's see what we did already, right? So अभी हमने जो diagram था, right? So let me open that diagram again so you will understand, right? So we understood that how the complete workflow of the Spring authentication, right? So authentication filter, authentication manager, authentication provider, user detail service, and password encoder, right? So user detail service and password encoder we already gave the implementation. Authentication provider we gave the implementation, right? Authentication manager, I told you that authentication manager you can, right, you can just there is a default implementation, you need to just configure if you have any specific provider for that authentication manager, right? Else it will use the default authentication manager. Okay, authentication filter, it is also Spring by default, right? It is, but we can use our own filter. I'll do a project and I'll give you the idea how it works. Security context, I already told that after authentication happens, the authentication object is being stored in a security context holder, and inside that context where the authentication object will be stored, and this authentication object will hold few information like what is the username, what is the password, principal password, and if it is authenticated, is authenticated method will be true, will return true, and all the authorities will be present inside your authentication. ठीक है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग अभी तक है, राइट? यस और नो? ठीक है, अभी नेक्स्ट दो तीन चीज और करते हैं, देन वी विल डू ए डेमो प्रोजेक्ट, सो इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस दैट व्हाट वी कैन डू. उसमें से एक चीज है, हमने अभी तक जो भी बोला है एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द ऑथेंटिकेशन, बट जब हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, राइट, इन द इनिशियल साइड, security means there is one more topic, that is the authorization, right? And how this authorization works, right? How to configure authorization. So let's take example, right? Let's do one thing. So let's for the I think sake of the last uh, this thing, okay, okay. So if you can see, this is my web security configure adapter. What I told earlier, that web security configure adapter, right, is the class using which we can configure our authentication, so that we can tell Spring Security here is the configuration, please use this. Okay, now let's take an example. Assume that just a minute. Okay. Assume that in your application, right, there are three endpoint. Okay, so endpoint 1, endpoint 2, and endpoint 3, 4 endpoint, assume endpoint 4. Okay. Now what you want to do, you want to give the access to this endpoint based on their role or authorities. Okay, now before going ahead, let me clear the confusion, these two terms, right? So role authorities. Okay, can anyone tell me what is the difference between these two, or what does it do? Whatever we did we did type of authorities, right? But what is this two term? You eventually, right, you will heard these two term interchangeably. But what is the difference between these two, and how we can configure a role, or how we can use the role? Can anyone tell?
by simply looking or the English grammar, that what is the role, what is the authorities. Any idea? Hmm. Okay. Hmm. Okay. Okay. And authorities? Allowing the user to have some role. Okay. ठीक है, logically it's correct, but let me give into the high level pure simple how we can understand, right? Okay, so assume that you are defining one system. Let's see what the system is. Uh, it's like एक फिटनेस ऐप बना रहे हो, ठीक है? लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, एक फिटनेस ऐप आपको बनाना है, ठीक है? फिटनेस ऐप का आइडिया और हाउ दिस थिंग वर्क, तो पूरा सिस्टम में क्या होगा कि सपोज देयर आर थ्री एंटिटीज विल बी देयर इन योर एप्लीकेशन. वन इज द कस्टमर, ठीक है, जो फिटनेस ऐप को यूज करेगा, ठीक है? उसमें क्या होगा कि आप एक्टिविटी को ट्रैकर करोगे, ठीक है? कस्टमर का या तो कोई डिवाइस होगा या कोई ऐप होगा, यू विल जस्ट ट्रैक इट ऑन कि मैं अभी दौड़ना भागना चालू किया, दिस इज द स्टॉप, राइट? So this will be the activity of customer. So customer का जो role होगा basically in the system to first of all to create their own profile, first of all register, secondly to update their activities. Okay, now third role is assume that uh, there is some, what you can say, fitness coach. What fitness coach can do, they can send some activity advice to the customer, right? And they can see the activity of the customer. So fitness coach will be assume that how it will happen, three or five customer will have single fitness coach. So one fitness coach will manage five different customer activity. Okay, and finally there will be admin role who can do everything, right? They can delete a customer, they can they can map the you know customer with a fitness coach, right? They can remove it, they can do everything, ठीक है? So there are three entities in this thing, right? Now how the how the authorities and the role, right, will be distinguished. Let's see. Okay, now assume that आप अगर आपका एप्लीकेशन में अगर कुछ भी करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, राइट, यू शुड हैव टू पर्पसेस. ओके, सो एक पर्पस होता है कमांड. कमांड मतलब क्या होता है? कमांड मतलब होता है कि आप कमांड दे रहे हो. कमांड मतलब यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म इन द एप्लीकेशन लेवल, ठीक है? इट कैन बी ऐड सम डेटा, right? It can be update some data, it can be delete some data. Yes, so every command in your system should have a database changes or entity changes, और कुछ भी आपका सिस्टम में कुछ चेंज होगा, right? And few things you are doing just only to know the information. Let's query. जैसे मेरे को find all activities, ठीक है, find all activities under my under my team, ठीक है? ये सब होता है क्वेरी. इज दैट ए करेक्ट जस्टिफिकेशन ऑफ ए सिस्टम? मतलब ये काफी रिलेटेड लग रहा है कि आपका
जितना भी फंक्शनलिटीज हो ये दोनों के बीच में ही होगा, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये सुनो, कमांड या क्वेरी, या तो आप कुछ डेटाबेस में चेंज करोगे, अपडेट करोगे, या आप कुछ चीज फेच करोगे, और यू विल जस्ट राइट ए सिलेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड ऑल स्टेटमेंट, राइट, दिस टाइप ऑफ थिंग। यस, करेक्ट। दूसरा कुछ तो है नहीं, राइट। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑथोरिटीज बना सकता हूँ, ठीक है। अभी ऑथोरिटीज क्या क्या बना सकता हूँ कि मेरा समझ लो कि मैंने ऐड के लिए ऑथोरिटीज बनाए, ठीक है। अच्छा, अपडेट के लिए ऑथोरिटीज बनाए, ओके। डिलीट के लिए ऑथोरिटीज बनाए, ठीक है। अभी समझ लो कि व्यू ओन डेटा, ठीक है। व्यू ग्रुप डेटा, okay, then view and update, delete, view one data, view group data, view all data, ठीक है। कस्टमर, ठीक है। अपडेट कस्टमर, डिलीट कस्टमर, ओके। उसके बाद एड एफसी में फिटनेस कुछ ऐप कर सकते हो, अपडेट एफसी, डिलीट एफसी, असाइन एफसी, फिटनेस कोच, ठीक है। So these are the all the endpoint I would having in my own system, ये सुनो, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूँ, सबको मैं ऑथोरिटीज दे सकता हूँ कि भाई ये सब मेरा ऑथोरिटीज है, ठीक है, सब एक एक मेरा ऑथोरिटीज है। अभी मैं जब कस्टमर बनाऊंगा तब मैं उसमें उसमें और एक डाल दूंगा, समझ लो कि रजिस्टर कस्टमर, ठीक है। और एक होगा रजिस्टर एफसी, ठीक है। अभी मेरा जो कस्टमर बनेगा, मैं कस्टमर, कोई भी कस्टमर जब लॉगिन करेगा तब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसमें ये ऑथोरिटीज ऐड कर सकता हूँ कि यू कैन रजिस्टर, राइट, कस्टमर, ठीक है, ओके। नाउ दूसरा ऐप होगा अपडेट एक्टिविटी, ठीक है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं खुद को रजिस्टर कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद मैं अपडेट एक्टिविटीज़, मैं एक्टिविटी को अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये देख सकता हूँ कि व्यू ओन डेटा, ठीक है। और एक इधर ऐड कर देता हूँ व्यू एडवाइस। अभी यहाँ पे समझ लो मैं ये कर सकता हूँ कि एफसी क्या कर सकता है, अपडेट एडवाइस, ठीक है। ये मेरा कस्टमर है, कस्टमर को ये ऑथोरिटीज दे दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं किसको जाऊंगा, और फिटनेस कोच को जाते हैं। फिटनेस कोच को मैं क्या क्या ऑथोरिटीज दूंगा कि दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ, रजिस्टर एफसी, right, then what they can do, they can update advice, and they can view
ग्रुप डेटा। अभी दूसरा कौन है, एडमिन। एडमिन को मैं सब कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो टोटल सिस्टम है, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस दीज आर ऑल माय अथॉरिटीज, क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैंने कस्टमर को 4 अथॉरिटीज दे दिया, फिटनेस कोच को मैंने ये सारा अथॉरिटीज दे दिया, राइट। एडमिन को ये सारा अथॉरिटीज दे दिया, ओके। नाउ द सिस्टम इज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी रोल क्या आता है, ठीक है। अभी देखो कोई भी नया कस्टमर आएगा तो उसको हर टाइम ये सब अथॉरिटीज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये एंड पॉइंट में जब जाएगा ये अथॉरिटीज चेक होगा, राइट। ये अथॉरिटीज आर इट्स लाइक दैट एक्टिविटी ही वांट टू डू, द क्लाइंट डज हैव द एक्सेस टू परफॉर्म द एक्टिविटी, ठीक है। ये सब अथॉरिटीज को मैं अगर एक ग्रुपिंग कर देता हूँ दैट बिकम्स ए रोल, ठीक है। सो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द अथॉरिटीज व्हाट आई कैन डू, I can create a role, right, that is the customer role, ठीक है। So I can write it like role customer, and whenever I will give the authentication or whatever I will do, every customer will have the role of a customer, right, and this customer role have access to this method, register customer, update activity, view on data, view advice, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं कस्टमर को कल कुछ नया रोल मतलब नया चीज ऐड करना चाहता हूँ, राइट, दैट अपडेट, राइट। सो एवरी कस्टमर की प्रोफाइल में मेरे को अथॉरिटीज ऐड करने का जरूरी है नहीं। मैं जो जो एक्टिविटीज ऐड एक एंड पॉइंट ऐड करूंगा वहां पे मैं सिर्फ ये चेक कर लूंगा कि ये कस्टमर है कि नहीं रोल, देन आई कैन ऐड द फंक्शनलिटी टू द कस्टमर। क्लियर है? ये सुनो, ठीक है। You can do your analysis, role and authorities, right, how it makes sense. It might have different implementation, but for a simple example this is fine, ठीक है। सो रोल एंड एक्टिविटीज हो गया। अभी आते हैं ये वापस इधर आते हैं, राइट। N.1, N.2, N.3, N.4। अभी मैं अभी बात करूंगा, लेट्स डू ऑन द ऑथोरिटीज बेसिस में बात करते हैं, बाद में रोल में बाद में आते हैं, रोल भी हम दिखा देंगे रोल कैसे, ठीक है। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि N.1 शुड बी पब्लिक, कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। N.2 का क्राइटेरिया है इट शुड बी एवरीवन हु इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, विथ एनी ऑथोरिटीज शुड बी एक्सेसिबल। N.3 का मैंने क्या कर दिया कि भाई अगर ऑथेंटिकेटेड विथ, समझ लो मैंने क्रिएट ऑथोरिटीज, और N.4 का जो है इसको मैंने बोल दिया ऑथेंटिकेटेड विथ रीड ऑथोरिटीज, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक ए सिस्टम, ये एक रियल बिजनेस सिनेरियो हो सकता है, ये सुनो। कहीं भी आप एप्लीकेशन में जाओ आपको मल्टीपल टाइप ऑफ अथॉरिटीज मांग सकते हैं कि इसके लिए मेरे को ये इन पॉइंट चाहिए, ये इन पॉइंट को पब्लिक रखो, इसको आप ऑथेंटिकेशन लगाओ, इसको ये रोल का ऑथेंटिकेशन हो सकता है, राइट। एंड यू आर मेकिंग ए सिस्टम जस्ट लाइक आई गेव द एग्जांपल, राइट। ये क्लासिक एग्जांपल ले लो कि कस्टमर को सिर्फ यही एक्सेस होना चाहिए, फिटनेस कोच को सिर्फ यही एक्सेस होना चाहिए, राइट। अगर कुछ मेथड है, एंड पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे जिसको रजिस्टर कस्टमर का ये एंड पॉइंट नहीं, समझ लो कि इसका इक्विवेलेंट रेज कस्टमर का कस्टमर/रेज करके एक एंड पॉइंट है। these are the authorities and the endpoint should be like customer/register, okay। तो हमको उसका मैप करना है, right। so how I can do the things,
ये काफ़ी काफ़ी मतलब रिलेटेबल लग रहा है क्या कोई भी सिस्टम से कि ये नहीं चाहिए ऑथोरिटीज, इट नीडेड राइट, डेफिनेटली इट नीडेड। तो हाउ वी कैन डू द थिंग्स, ओके लेट्स सी। सो अभी एक चीज़ मैं जो एक एक टाइम पे स्किप किया था, आई नाउ नाउ एक्सप्लेन दैट पार्ट। व्हाट इज दैट पार्ट? इट्स लाइक अभी एक काम करते हैं, अभी सिर्फ ऑथोरिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए I will only use this thing. What this is doing? This is a in-memory authentication with user 1 password authorities, right? With user 2 password authorities. Read इसको मैं चेंज करूँगा। इसके लिए आपको ना तो इम्प्लीमेंटेशन देना है कस्टमर यूजर डिटेल सर्विस का, बिकॉज यूजर 1 यूजर 2 आपने दे दिया, ओके। दूसरा एक चीज़ है कि आपको सिर्फ पासवर्ड एनकोडर का, वो भी नो पासवर्ड एनकोडर का इम्प्लीमेंटेशन देना है, बाकी और कुछ नहीं, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, इट विल टेक केयर। सो ये सब रिडंडेंट है, बट हमने जस्ट कोड किया था तो इसीलिए सब कमेंट आउट कर दिए। इफ़ यू गो देयर आई कमेंट आउट द कंपोनेंट, सो इट विल बी नॉन रजिस्टर। इफ़ यू कम हियर कस्टमर रजिस्टर, राइट, देयर इज नो कंपोनेंट, सो नो वन इज गोइंग टू यूज दिस। कस्टमर यूजर डिटेल सर्विस, ये भी यहीं कहीं पे इसको मैंने यूज़ नहीं किया। सिक्योरिटी कन्फिग में यूजर डिटेल सर्विस को मैंने इधर कमेंट आउट कर दिया, ओनली द पासवर्ड एनकोडर विल बी देयर। वेब सिक्योरिटी कन्फिगर में ये जो कन्फिगर मेथड है ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर, दिस विल बी ओनली यूज, राइट। सो हियर आई एम डूइंग द ऑथेंटिकेशन। तो अभी ऑथराइजेशन किधर करना है? ऑथराइजेशन के लिए वेब सिक्योरिटी कन्फिगर एडाप्टर दूसरा मेथड देते हैं, ठीक है। so this is the method for here we do for authentication, here we do configure the authorization। http security करके एक मेथड है, दूसरा एक है। सो इसमें हम देते हैं, ठीक है, अभी के लिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एज्यूम दैट मेरा इधर क्या क्या एंड पॉइंट है। मैं पहले एक एंड पॉइंट बनाऊंगा कि हेलो को आप पब्लिक कर दो, मतलब कोई भी विदाउट ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है, एंड हाउ वी कैन डू द थिंग्स, ओके लेट्स सी। सो आपको क्या करना है, इसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, इसका सिंपल बिल्डर क्लास है HTTP, ठीक है। अभी मेरे को लिखना है कि ऑथराइज रिक्वेस्ट कैसे रिक्वेस्ट करना है, राइट। मैं बोलूँगा एनी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट आया मैं बोलूँगा परमिट ऑल, ठीक है, ओके लेट्स गिव इट अ रन। Let me open one notepad. Okay. Right. किधर होस्ट हो रहा है? 5000003 में। Let me take a look that 5003 is working or not. 500, right? So what I'll do, let's go to the authentication। बेसिक ऑथ में मैं कुछ नहीं दूंगा, नो ऑथ, ओके। बॉडी में कुछ नहीं है, हेडर में कुछ नहीं है, ये सब सॉरी बेसिक हेडर होता है, ठीक है। हेलो फ्रॉम स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्रॉम एनोनिमस यूज़र, मतलब क्या, इसको तो यूज़र कुछ मिला नहीं, तो ये क्या ऑटोमेटिकली उसको एनोनिमस यूज़र कर दिया, बिकॉज हमने हेलो कंट्रोलर में जाके क्या किया, हमने ऑथेंटिकेशन लेके इस ऑथेंटिकेशन को मैंने प्रिंट कराया, इसीलिए वो बोल रहा है कि कोई यू नहीं, बट एज आई गेव दिस परमिट ऑल, इसीलिए आपका सबको अलाउ कर रहे, ठीक है। by default if you don't use this method it will be, its form will be this,
ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब होता है कि आप कोई भी रिक्वेस्ट जो आएगा उसको आप ऑथेंटिकेट करो बाय डिफॉल्ट इफ़ यू डोंट गिव एनी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके, क्लियर है? यस और नो? ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी देखते हैं कि दूसरा एक एंड पॉइंट बनाता है हेलो कंट्रोलर में। ठीक है, अभी इसी में एक बनाता है। हेलो, इसको नाम थोड़ा चेंज करते हैं, गेट मैपिंग शुड बी, इसको चेंज करके रीड कर देते हैं। नहीं, हेलो को पब्लिक रखते हैं, सब कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन फर्स्ट वन विल बी द रीड। तो मैं इसको रीड दे दिया, बाकी सब ठीक है। क्या कर ओके, राइट, एंड पॉइंट बनाते हैं। सिर्फ ऑथेंटिकेशन, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास 4 एंड पॉइंट है अभी, हेलो, रीड, राइट, ऑथ। ओके, अभी जाते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है। सो पहले मेरे को ये क्या देखना है कि मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। मैं पहले 4 यूज़र बना देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी। सो एक ऑथोरिटीज़ है, समझ लो रीड। अनदर ऑथोरिटीज़ मैं यहाँ पे दूंगा ओके, मैं यहाँ पे दूंगा, क्या दे सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे फिर आप जितना ऑथोरिटीज़ ऐड कर मतलब जितने यूज़र ऐड कर सकते हो, एंड विथ यूज़र 3 डॉट पासवर्ड, सेम पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑथोरिटीज़। और क्या क्या ऑथोरिटीज़ था मेरा, एक था रीड, राइट, और इधर हमने क्या क्या इनपुट सेट किया। सो दिस इज़ द पब्लिक, ठीक है, दिस इज़ द रीड एक्सेस, ओके, दिस इज स्पेसिफिक राइट एक्सेस, और दिस इज द हैविंग एनी एक्सेस, ठीक है, एक्सेस होना चाहिए सिर्फ रीड, राइट, ओके, ठीक है, दिस आर आई थिंक सफिशिएंट, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, अभी एक चीज़ होता है कि आप सिस्टम को थोड़ा जिसको राइट है उसको रीड एक्सेस भी होना चाहिए, तो यू कैन ऐड द रीड ऑल्सो हियर, बट लेट्स फॉर ए क्लासिक एग्जांपल अभी इसको छोड़ते हैं। लेट्स कॉन्फ़िगर हियर, लेट्स फोकस ऑन हियर। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑथराइज रिक्वेस्ट, अभी मैं उसको कैसे कन्वे करूँ कि मेरे को ये एंड पॉइंट का ये रोल है तो ही एक्सेस दो, नहीं तो मत दो, राइट। Now, instead of any request, it use two types of matcher. एक बोलता है ANT matcher, एक बोलता है MVC matcher, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। So let's see ANT matchers। इसमें आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है, क्या क्या दे सकते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक HTTP मेथड मेंशन करना है कि जो एंड पॉइंट के लिए, और क्या एंड पैटर्न है, पैटर्न क्या है एंड पॉइंट का। So there are 3 implementation you can do. Only the HTTP method, मेरे को सिर्फ अगर get को एक रोल को देना है, राइट, मेथड को एक लेवल पे देना है, जो भी है, राइट। सो एंड मेथड के साथ अगर पैटर्न को यूज़ करना है कि ये वाला गेट रिक्वेस्ट इसको देना है, राइट, देन इट विल यूज़ दैट।
सो अभी के लिए हमारा सारे गेट मेथड है, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट मेथड, बट यू कैन गिव द मेथड. व्हाट आई विल गिव कि मेरे राइट अगर है राइट, तो ऑथराइज रिक्वेस्ट एंड मैचर राइट, देन आई विल गिव हैज ऑथोरिटी. क्या ऑथोरिटी चाहिए राइट के लिए? राइट ऑथोरिटी चाहिए. ओके ठीक है. एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा इसको थोड़ा सा एंड ऑथराइज रिक्वेस्ट डॉट अगेन एंड मैचर. मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी को रीड का एक्सेस चाहिए, रीड एंड पॉइंट का एक्सेस चाहिए राइट, सो ही शुड हैव ऑथोरिटी टू ए रीड. ओके एंड ऑथराइज रिक्वेस्ट अगर और कुछ चाहिए और क्या चाहिए बोलो. ऑथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑथोरिटीज़ नहीं, जस्ट ऑथेंटिकेटेड होना पड़ेगा. ठीक है. और बाकी जितना भी एंड पॉइंट है बोलो, किसी का एनीवन एनी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ठीक है. Sorry, I'll just for the code purpose I'll just copy this class. If you want to see that what I did with the other class, simple custom authentication provider में जाके आप कंपोनेंट को कमेंट आउट कर दो. पासवर्ड एनकोडर में कुछ नहीं करना है. कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस में कुछ नहीं करना है. सिक्योरिटी कन्फिग में जाके इसको सिर्फ कमेंट आउट कर दो. बीन को कमेंट आउट कर दो. और वेब सिक्योरिटी कन्फिगर में यहाँ पे जो ऑटो एयर था ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इसको कमेंट आउट कर दो. ठीक है. नाउ इट विल रन. ओके. एनी क्वेश्चन, एनीवन है? कुछ क्वेश्चन है? काफ़ी सिंपल है. क्या लग रहा है?
बोलो बोलो। एग्जैक्टली। एंड रीड वाला हिट कर रहा है। सो उसके पास जो यूजर का रीड ऑथोरिटीज है, वही आपको मतलब वही ऑथोराइज्ड होगा वो उसको चेक करने के लिए। ओके। परमिट कर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहे हो। मैं पहले दिखाया था ना कि इसको आप डेटाबेस में रखो, कहीं पे भी रखो। मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आवर यूजर कि आप इन मेमोरी रख दो, सो दैट वी कैन गिव द डेमो। यूजर ऐसा ऐसा ऐड नहीं करना है, काफ़ी ऐड नहीं करना है। तो इसको इसको अगर करना है, अच्छे से करना है, लेट मी नो गिव यू द आइडिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अगर ऐसा करना है तो इसको हटा दो, कंपोनेंट। राइट, इसको कंपोनेंट बना दो। पासवर्ड एनकोडर इज नथिंग। कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस सब ठीक है। सिक्योरिटी कन्फिग में आपने जो कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस बीन को जो कमेंट आउट किया था, इसको अनकमेंट कर दो। ठीक है, राइट। एंड एंड यहाँ पे आप अनकमेंट कर दो। फिर आप इसको हटा के, ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, सॉरी, आप यहाँ पे ऑथ डॉट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऐड कर दो। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ये आपने जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के इम्प्लीमेंटेशन दिया, उस इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करेगा, राइट। एंड उसके अंदर आपका जो ऑथेंटिकेट मेथड है, दैट विल यूज़ द यूज़र डिटेल सर्विस व्हाट यू हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। ये जो यूज़र डिटेल सर्विस है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये मेरा यूज़र डिटेल सर्विस, ये मेरा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, राइट। एंड इसको हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में कैसे दिया कि हमने पहले 2 यूज़र बनाया, राइट, एंड देन वी क्रिएटेड ए यूज़र डिटेल्स, राइट, यूज़र डिटेल लिस्ट। देन हमने यूज़र डिटेल कस्टमर डिटेल सर्विस में उसमें एज ए लिस्ट ऐड कर दिया। सो ये सारे यूज़र ऐड हो गया। हाँ, रियल प्रोडक्शन सिस्टम में कभी ऐसा नहीं होता है, हमेशा यूज़र का डिटेल्स कहाँ रहता है, डेटाबेस में रहते हैं। ओके, so that you can configure what you already implemented using the JDBC token, JDBC user details, right। यहाँ पे जैसे हमने किया था, याद है, right, we using the data source of the JDBC user detail manager। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द, मतलब ये मत सोचो कि यूजर डिटेल्स को इन मेमोरी में रखना है, दैट इज द प्रोडक्शन सिस्टम। नो, कभी नहीं, कभी इन मेमोरी। बट टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है, राइट। if I every time I go to the database and database में जाके change, that can be done, I'm not saying that cannot be done, that can be done, but उससे अच्छा है कि ये इन मेमोरी में रख के दिखा दूंगा कि ये सारे यूज़र है, समझ लो ये यूज़र आप बाद में डेटाबेस में रखो, वहाँ से रीड करना है। सो दैट्स सिंपल JDBC फंक्शनलिटीज, दैट वी ऑलरेडी नो कि आपके पास अगर सारे कनेक्शन स्ट्रिंग है, आप डेटाबेस को रीड करके यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बना के आप ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को आप भर सकते हो, राइट।
या आप जब लोड यूज़र नेम करोगे, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, यहाँ पे आप डेटाबेस कॉल करके सारे यूज़र, उस यूज़र का यूज़र डिटेल्स आप डेटाबेस से निकाल सकते हो, राइट। सो स्प्रिंग इज गिविंग यू द फंक्शनलिटीज, वो सिंपल इंटरफेस दे दिया, बट इट इज़ नॉट सेइंग यू कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट, वो आपके ऊपर है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। उसने जो यूज़र डिटेल सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन है, उसने बोला कि लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ये एक मेथड है। मैं यूज़र नेम दूंगा, उससे आप यूज़र डिटेल्स मेरे को वापस दो। आप यूज़र नेम देने के बाद यहाँ पे JDBC कॉल करोगे कि इन मेमोरी में से उठाओगे, दैट यू कैन इम्प्लीमेंट योर ओन। समझ रहे हो? ओके, सो नाउ यहाँ पे अगर ये यूज़ करना है तो मेरे को यूज़र 1 को रीड एंड यूज़र 2 को राइट एक्सेस देना है, ठीक है। रन करो इसको, लेट्स हैव ए एग्जांपल, रन करके देखते हैं। ठीक है, हेलो के लिए हमको कुछ नहीं चाहिए, सो लेट्स सी दैट हेलो इट इज़ गिविंग द एनोनिमस यूज़र। बट जब भी मैं रीड वाला कॉल करूँगा, राइट, ऑथराइजेशन में मैंने कुछ नहीं यूज़ किया, राइट, सो इट विल गिव मी, रीड को भी दे दिया, क्या बात है, देखते हैं राइट को भी क्या दे दिया, बट ये गलत है, तो हमने कुछ गलत तो किया है, देखते हैं। राइट एनोनिमस यूज़र, ऑथ वाला भी दे दिया, क्या बात है, एंजॉय, तुम्हारा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गया। लेट्स सी व्हाट इट डिड रॉन्ग। Can anyone tell me what we did wrong? Why? But actually तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आई गॉट योर पॉइंट, तो बोल रहे हो कि वो जो हमने इधर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग किया है, किधर है, सॉरी, इसमें ये हमेशा हो रहा है, बट फिर ये तब ये सब का क्या मतलब है, मतलब परमिटल को हटा दूंगा तो, परमिटल को हटा दूंगा तो देख सकते, बट आई थिंक आई गॉट द पॉइंट, ठीक है, क्या है, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमने स्लैश राइट स्लैश रीड स्लैश ऑथ दिया, बट मेरा एंड पॉइंट क्या है, ये वाला कौन ऐड करेगा, तो उसको तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं ना, राइट। अभी यहाँ पे आप रेजिक्स पैटर्न भी देख सकते हो, रेजिक्स पैटर्न इज लाइक स्टार डबल स्टार, शायद डबल स्टार, ठीक है, कि इसके आगे कुछ भी हो, तुम अगर ऐसा राइट मिलता है, रीड मिलता है, ऑथ मिलता है, तो यूज करो, लेट्स सी इफ इट वर्क।
ठीक है। हम जाते हैं, फिर देखते हैं ऑथ में कुछ ऑथराइजेशन नहीं दिया, फिर भी नहीं चला, मतलब कुछ तो लोचा है। ठीक है, हमने कुछ गलत कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। थोड़ा गूगल करके देखते हैं, इसका सिंटैक्स कुछ एरर दे रहा है शायद। http डॉट ऑथेंटिकेशन security with just 1 second। मेरा शायद इसका क्लासिक एग्जांपल होगा मेरे पास। लेट मी टेक ए लुक दैट प्रोजेक्ट। ऑथेंटिकेशन गलत दे रहा हूँ। ठीक है, एज सजेस्टेड अभी हमको थोड़ा R&D करना पड़ेगा। लेट्स सी, इसको करके देखते हैं क्या होता है। Authorization P1 no, it's again working. I think I got the point why it is not happening. HTTP security, HTTP authentication, this request has been अभी तो और प्रॉब्लम हो गया। अभी तो सब कुछ दे रहे, पहले तो वो चल रहा था। ओके, ठीक है, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। अभी क्यों नहीं हो रहे, मैं थोड़ा डिबग करके वापस आऊँगा। ओके, वी लेट्स नॉट स्पेंड द टाइम ऑन दिस ऑथराइजेशन जो है, बट एक्चुअली यू कैन कॉन्फ़िगर दिस थिंग, बट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो लेट्स नॉट वेस्ट दैट टाइम। मैं उसको देख के फिर वापस आऊँगा। ओके, इज दैट ओके? ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक ए लुक, राइट। स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसमें आप देख सकते हो। इफ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन यू विल गेट सम आइडिया। ओके, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी क्या करना है। नाउ लेट्स डू थिंग्स, राइट। सो सैम्पल प्रोजेक्ट एक हम करना है सैम्पल प्रोजेक्ट, राइट। दिस विल बी नॉट whatever we learn till now point. Authorization I will come back,
बट ऑथेंटिकेशन में हमने जो भी अभी तक सीखा है, जितना भी आइडियाज़ है, इसको हम जितना भी इम्प्लीमेंटेशन दिए हैं, राइट, इसको हम कैसे यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। सो देयर आर टू ऑप्शन, राइट। तो हम दो मॉडल प्रोजेक्ट है, दो मॉडल प्रोजेक्ट। एक है कि हम ऐसा करते हैं, लेट्स मी गिव वन एग्जांपल। ओके, समझ लो मेरा पास कैसा होगा, फाइल न्यू, थोड़ा बहुत ड्राइंग करना है। अच्छा, ड्राइंग के लिए देता है, ठीक है, ग्रेट। ओके, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए मेरे को। इंसर्ट सेव चाहिए, ठीक है। ओके, कोई भी आप एप्लीकेशन में जाते हो, कोई भी एप्लीकेशन जाते हो, हर एक एप्लीकेशन का एक अलग ऑथेंटिकेशन क्या बोलते हैं मेथड होता है, ऑथेंटिकेशन टाइप होता है, कैसे ऑथेंटिकेट करना है, राइट। यू माइट हर्ड अबाउट द थिंग्स कि सिक्योरिटी एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे कंपनी को बहुत लॉस झेलना पड़ा। इट माइट बी एनीथिंग, राइट। सो देन हाउ राइट, यूज़र ने कैसे, मतलब इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइनर है, दे गिव सम आइडिया कि अच्छा ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। उसमें एक तरीका है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एनीवन नोज अबाउट दिस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? एनी आइडिया? एग्जैक्टली, करेक्ट। कोई भी बैंक का लॉगिन करते हो तो शायद इस टाइप ऑफ चीज़ रहता है मोस्ट ऑफ द बैंक, राइट, कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में फॉलो करना है। यूजर नेम पासवर्ड तो ठीक है, एक हो गया यूजर नेम पासवर्ड, दैट इज वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज लाइक यू माइट हैव यूजर नेम पासवर्ड प्लस सॉरी यूजर नेम एंड OTP, ठीक है। आप यूजर नेम OTP दो तो मैं आपको लॉग इन करके दूंगा, ठीक है, नहीं तो नहीं देते, नहीं देंगे, ठीक है। नाउ how we can design this, so our requirement is like, समझ लो मेरा एक एंड पॉइंट है, कोई भी एक रिसोर्स सर्वर है जहाँ पे एक एंड पॉइंट होस्ट हो रहा है, whose name is hello, ठीक है। एंड यहाँ मेरा यूजर है, ठीक है, ये मेरा यूजर है। ओके, now user want to reach to this hello endpoint, right? hello is, समझ लो मेरा hello endpoint में मेरा कंपनी का पूरा वेबसाइट आ जाता है, इनिशियल पेज आ जाता है। बट बिफोर गोइंग टू दैट स्टेप, व्हाट वी वांट टू इम्प्लीमेंट, कि पहले वो यूजर नेम पासवर्ड देगा। सो यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद उसके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम उसको क्या देना है, यूजर नेम एंड OTP देना है, ठीक है। यूजर नेम अगर से मतलब अगर आप ब्राउजर में करते हो तो ब्राउजर में यूजर नेम ऑलवेज रहता है, फर्स्ट टाइम ऐसे दिया तो सेकेंड टाइम आपको सिर्फ OTP यूजर से एंट्री होना चाहिए। अगर यूजर नेम OTP सही गया तो इट विल अगेन कम बैक एंड इट विल डू द ऑथेंटिकेशन कि ये सही हुआ कि नहीं। अगर सही हुआ देन आई विल गिव समथिंग, राइट, कि भाई तुमको मैं एक कुछ देता हूँ, सो दैट दिस इज ए वैलिड थिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल करोगे वो मेरे पास वापस लेके आना, सो दैट आई वुड नो कि तुमने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट कर चुके हो। नाउ पहला वाला चीज़ तो समझ में आया, राइट। मैं पहले यूज़र नेम दिया, यूज़र नेम पासवर्ड दिया, मेरा मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसके बाद में OTP देने के बाद आई शुड गेट समथिंग दैट इज़ द टोकन, ठीक है। अभी टोकन क्या होता है कि आपने अभी तक जितना भी इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल देखे हैं, सब जगह आपको हर एक कॉल में यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, राइट, हर एक कॉल में, यस और नो? यस, बट इट इज़ नॉट द राइट वे टू डू द थिंग्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो करना चाहिए, सो दैट यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अगर एक बार में आप टोकन में चले जाते तो नो वन विल अंडरस्टैंड कि अच्छा प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये है यूजर नेम पासवर्ड में एवरी टाइम क्लाइंट शुड यू नो होल्ड द पासवर्ड एंड होल्ड द यूजर नेम,
ठीक है। उससे अच्छा है कि हम उसको क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप क्या करोगे फिर इससे प्रॉब्लमेटिक। तो आपका वर्क फ्लो में एक नया चीज आ जाता है, दैट इज अ टोकन। अब जब भी ऑथोरिटीज ऑथोराइज कर देते हो, आप एक टोकन दे दो, ठीक है। वो टोकन क्लाइंट को दे दो, क्लाइंट को बोलो कि नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल करोगे उस टोकन लेके आना, बट दैट टोकन शुड हैव ए एक्सपायरी टाइम, कि कितना टाइम के बाद वो टोकन ऑन नहीं चलेगा, मतलब कितना टाइम के बाद आपको फिर से एक नया टोकन लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कुल, ठीक है। तो हम अभी जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो है कि आपने एक यूज़र नेम दिया, आपको एक पासवर्ड दिया, आपने नेक्स्ट स्टेप में अगर करोगे तो उस टाइम पे आपको यूज़र नेम एंड ओटीपी देना पड़ेगा। उसके बाद यू विल गेट वन टोकन। नेक्स्ट टाइम आप वो टोकन लेके हेलो एंड पॉइंट को कॉल करोगे तो यू विल गेट द रिस्पॉन्स। बिफोर दैट, इफ यू डोंट यूज एनी टोकन और इफ यू ट्राई टू hit this hello endpoint, no result you will get, or you will get some unauthorized result। ठीक है, ओके। ओके, नाउ द बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम कोई भी अगर इफ यू गो टू द माइक्रो सर्विस वे और एनी वे, राइट। सो जो आपका हेलो एंड पॉइंट होस्ट कर रहा है, राइट, इट शुड नॉट होल्ड द ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इट शुड नॉट, इट इसका काम होना चाहिए कि यार मेरे पास टोकन आया, मैं उस टोकन में कुछ मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब आई आई शुड नॉट होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑथर, द यूजर, ऑल्सो आई शुड नॉट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टू सेंड द ओटीपी, राइट। दैट्स व्हाट वी ब्रेक दिस फंक्शनलिटी इनटू टू वे, ठीक है। हम दो तरीके से, दो कंपोनेंट में हम उसको डिवाइड करते हैं। मेरा एक कंपोनेंट होगा जिसका मैं नाम देता हूँ ऑथ ओटीपी सर्वर, ठीक है। ऑथ ओटीपी सर्वर का काम होगा, क्या काम होगा इसमें, ठीक है। इसमें मैं 3 एंड पॉइंट होस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। यूजर ऐड, सो कोई कोई भी यूजर को ऐड कर सकते हैं। यूजर ऑथ, ठीक है, और यूजर, सॉरी, ओटीपी चेक। इसका मतलब क्या है, मेरे यूज़र ऐड में क्या होगा, मेरा डेटाबेस, इसके ये जो एप्लीकेशन बनेगी इसको मैं एक डेटाबेस में रखूँगा और यूज़र को मैं ऐड करूँगा। उसके बाद यूज़र ऑथ में मैं क्या करूँगा, आई विल चेक दैट कि मेरा जो यूज़र है वो सही है कि नहीं है, उसका पासवर्ड सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर पासवर्ड सही है सो आई विल सेंड ए ओटीपी। अभी ओटीपी सर्वर तो हमारे पास है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, हम डेटाबेस में ओटीपी को परसिस्ट करेंगे और डेटाबेस से देख लेंगे ओटीपी क्या है, ठीक है। और थर्ड जो होगा उसमें जो ये सर्वर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अगर मेरे पास आएगा, राइट, सो आई विल गिव देम दैट ओटीपी इज चेक्ड, मतलब ओटीपी का वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इसका रिटर्न करूंगा बुलियन, ओके। सो माय फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑथ ओटीपी सर्वर, राइट, which will have these 3 endpoint, one is like user add, user auth, OTP check, ठीक है। इसके बैकएंड में डेटाबेस रहेगा, डेटाबेस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या क्या चीज़ स्टोर करना पड़ेगा। एक है यूज़र डिटेल्स, तो फॉर मेक इट सिंपल आई विल ओनली स्टोर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। मैं ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रीड एक्सेस कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको नहीं स्टोर कर रहा हूँ बिकॉज एवरी वन विल बी यूज़र, बट अभी सिंपल हमको जो चाहिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। दूसरा एक टेबल में मेरे को ओटीपी स्टोर करके रखना है। अभी ओटीपी स्टोर करके रखना है तो आई विल हैव द अनदर टेबल फॉर सिंप्लिसिटी, यूजर नेम एंड ओटीपी, ठीक है। फाइन है, किसी का कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, राइट? नो, यस, कुछ, ठीक है।
तो इसका हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बता दी, इसका ड्यूटीज क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे ऐड यूजर हो सकता है, ऑथ होगा, ऑथ में एक ओटीपी स्टोर होगा, और कोई अगर बोलेगा कि ओटीपी चेक है तो ओटीपी चेक हो जाएगा। ओके, एंड अभी इसको अलग से इम्प्लीमेंट करता है, इसका हो गया। अभी आता है रिसोर्स सर्वर, जो हमारा एक्चुअल जिसके पास वो रिसोर्स है, मतलब जो हमारा हेलो को होस्ट करता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें मैं दो एंड पॉइंट को हिट करना चाहता हूँ। एक एंड पॉइंट है कि लॉगिन, ठीक है, सेकेंड एंड पॉइंट होगा हेलो, ठीक है। अच्छा, लॉगिन एंड पॉइंट में देखते क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होना होगा। मैं जब लॉगिन करूँगा तो इनिशियली हमको क्या क्या देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गिव यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद अगेन आई नीड टू कॉल लॉगिन। उसके बाद मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ गया, यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर होगा, मेरे को फिर से लॉगिन कॉल करना है, राइट, विथ यूजिंग यूजर नेम ओटीपी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं हेलो कॉल करूँगा। सो ये जो यूज़र नेम ओटीपी है, इसमें मेरा एक टोकन आएगा, वापस आएगा एक टोकन आएगा, जिसको हम अभी टोकन ही लिखते हैं, ये हेडर में आएगा ऑथेंटिकेशन टोकन। मैं हेडर में ये ऑथेंटिकेशन टोकन को ऐड करके मैं हेलो एंड पॉइंट को कॉल करूँगा। सो आई शुड गेट द रिस्पॉन्स ऑफ हेलो। ओके, क्लियर है। अभी यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो डोंट थिंक कि ये कैसे होगा आप दो लॉगिन। इसके लिए एक यूआई बनेगा, वो यूआई में इनिशियली आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, राइट, इट विल कॉल द लॉगिन फॉर फर्स्ट। सेकेंड टाइम आपका डिस्प्ले में आएगा कि आप ओटीपी डालो। जब आप सिंपल ओटीपी डालोगे, इट विल अगेन कॉल द लॉगिन पेज एंड इट विल गिव द यूजर नेम ओटीपी। ओके, so now we are designing the backend. That's what, there are two login, one is the username password and second thing is username OTP. But from a UI perspective, yeah, it should be seamless in front of customer को ऐसा दो बार login ना करने पड़े। So don't get confused with that idea, right? Is that okay? तो अभी देखते हैं रिसोर्स ओटीपी को क्या क्या करना है। तो अभी थोड़ा थोड़ा let's do the things, how things can be done, what we need to do, everything, right, we will do in detail, ठीक है। अभी इसके लिए सोचते हैं, पहले ऑथ ओटीपी सर्वर को सोचते हैं, ठीक है। And okay, now let's see the whole example, right? If I give the login, I get the username password. अभी इसमें क्या क्या होना चाहिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी इसमें घुसाते हैं, क्या क्या आइडियली होना चाहिए। ओके, सो आइडियली यह होना चाहिए कि आप पहले क्या करोगे, पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है, राइट। ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाएगा, कैसे बनाएगा, आपको यहाँ पे कुछ एक फिल्टर होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन फिल्टर विल फर्स्ट इंटरसेप्ट दिस रिक्वेस्ट, यस और नो, राइट। ऑथेंटिकेशन फिल्टर पहले फंक्शनलिटीज में आएगा, राइट, इट विल टेक दैट थिंग कि ऑथेंटिकेशन फिल्टर में, उसमें आप क्या करोगे, आप बेस्ड ऑन दिस यूजर नेम पासवर्ड आप एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। रिमेंबर दिस डायग्राम, दैट डायग्राम, क्लाइंट, देन ऑथेंटिकेशन फिल्टर, देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर में क्या करते हैं, authentication filter will create authentication object, then it will give that object, right, and call authentication manager, ठीक है। authentication manager will call a authentication provider, yes or no, सिंपल फ्लो यही हम करने वाले हैं। तो मैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये जो प्रोवाइडर होगा, प्रोवाइडर का काम क्या होगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में क्या मेथड होता है, एनीवन कैन टेल, ऑथेंटिकेट मेथड होता है,
राइट। एंड उसका इनपुट क्या हुआ, एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट वेयर इट इज नॉट येट ऑथेंटिकेटेड, इज ऑथेंटिकेटेड इज फॉल्स, देयर इज नो ऑथोरिटीज, ठीक है। और उसका आउटपुट होगा कि या तो ऑथेंटिकेशन ऑन प्रोग्रेस या ऑथेंटिकेशन हैज बीन डन। अगर प्रोग्रेस दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मतलब अभी तक ऑथेंटिकेट हुआ नहीं, अगर ऑथेंटिकेटेड हो गया तो हमको क्या करना है, उसमें इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू करना है और हमने ऑथोरिटीज को सारे उसके अंदर डालना है, राइट, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, नाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर login, username, password, authentication filter, authentication object, authentication manager, authentication provider. Authentication provider, after that what it will do, it will अभी इसके बाद ऑथेंटिकेशन करने के बाद इसको क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इसको ओटीपी भेजना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हो गया, आप ऑथेंटिकेट हो गया, राइट, यूजर नेम पासवर्ड से, उसके बाद आपको ओटीपी भेजना है, राइट। सो इट विल कॉल द अदर सर्विसेज, दैट इज user/auth, ठीक है, ये सुनो, कॉल करेगा, कॉल करने के लिए वो रेस्ट टेम्पलेट से कॉल कर देगा, राइट, और फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, इसका पास और कुछ काम नहीं है, ये और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अभी लेट्स सी दैट यूजर नेम ओटीपी का फ्लो क्या होता है। यूजर नेम ओटीपी का फ्लो भी सेम है, राइट। सो यहाँ पे भी हमारा एक ऑथेंटिकेशन फिल्टर होगा, ठीक है। जो ऑथेंटिकेशन फिल्टर देखेगा कि यूजर नेम ओटीपी वाला ऑब्जेक्ट आया है तो इसको एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाता है। आफ्टर दैट आई वुड हैव ए ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथ मैनेजर, उसके बाद आई विल हैव ए ऑथ प्रोवाइडर, स्पेसिफिक ऑथ प्रोवाइडर। इस ऑथ प्रोवाइडर का काम क्या होगा, ये ऑथ प्रोवाइडर का काम होगा कि अगर उसने पहले उसका काम होगा कि ओटीपी को चेक करना है, जो ओटीपी आया है वो ओटीपी सही है कि नहीं है। अगर सही है तो वो क्या करेगा, इट विल जेनरेट ए टोकन। इसका काम क्या है, जेनरेट टोकन करना है। उसके बाद उस टोकन को ऐड दैट टोकन इन हेडर, ओके। सही है, यस और नो। ओके, नाउ फाइनली जो हेलो एंड पॉइंट होगा। सो गाइस, एक चीज मैं जस्ट, यू माइट फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल कि चल क्या रहा है, बट दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हमेशा याद रखना कि आपका जो फ्लो होगा ना, वो फ्लो इट विल बी ऑलवेज यूज द स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्लो। आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट डाल के या बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करके यू कैन मेक इट योर ओन वे, राइट, एल्स स्प्रिंग सिक्योरिटी विल टेक केयर। नाउ व्हाट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दैट all the contracts मतलब all the interfaces, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के इंटरफेस क्या है, ऑथेंटिकेशन यूजर डिटेल सर्विस का इंटरफेस क्या है, राइट, यूजर डिटेल्स का यूजर डिटेल्स क्या होता है, उसमें इंटरफेस में क्या क्या डिटेल्स हमको देना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन का इंटरफेस क्या है, राइट, दिस आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। बाकी आपको बहुत ही इजी लगेगा, फिर देन यू अंडरस्टैंड कि हमको क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या क्या यहाँ पे मिसिंग है, राइट, बिकॉज स्प्रिंग सिक्योरिटी विल ऑलवेज यूज इट्स ओन फ्लो। अब उसके अंदर आप कुछ गलत कर देते हो सो इट विल नॉट वर्क। नाउ लेट्स कम टू द हेलो एंड पॉइंट। हेलो में मेरा क्या चाहिए, यहाँ पे भी मैं एक फिल्टर लगाऊंगा, बट इट इज नॉट ए ऑथेंटिकेशन फिल्टर, इट विल बी सिंपल फिल्टर जो क्या करेगा, मेरे हेडर से JWT को निकालेगा, राइट, हेडर से to get token, not JWT, okay, sorry, JWT यूज नहीं करूंगा, I will just token filter to get the token। अभी टोकन को क्या करेगा वो,
राइट. इट विल ट्राई टू मैच द टोकन कि मेरा पास जो भी पहले इशू हुआ था, राइट, यहाँ पे जो जेनरेट टोकन हुआ था उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट. अगर मैच हो गया तो मैं क्या करूँगा, व्हाट शुड आई डू, क्या करना है अगर मैच हो गया. हाँ, एग्जैक्टली. सो व्हाट शुड आई डू. अभी स्लैश को डायरेक्ट हम एक्सेस कैसे देंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट. स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो एंड पॉइंट है वो कहाँ से चेक करता है, कहाँ से वो ऑथेंटिकेशन चेक करता है. एक मैंने बोला था ना, स्प्रिंग सिक्योरिटी होल्डर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर, राइट. यस और नो, राइट. सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर के अंदर एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है जहाँ पे वो चेक करता है कि उसके अंदर अगर ऑथेंटिकेटेड है तो आपको एक सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी होल्डर में डाल देना है. ओके, कैन रिमेंबर, मैं दिखा देता हूँ. देखो, ये जो एंड पॉइंट था ना, एंड पॉइंट में हमने क्या किया था, एंड पॉइंट में मैंने बोला था कि ऑथेंटिकेशन एक ऑब्जेक्ट होता है जो सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर की कंटेक्स्ट के अंदर स्टोर रहता है. ठीक है. ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट जो होता है, इसमें जो इज ऑथेंटिकेट अगर ट्रू हो गया तो दिस विल वर्क. ठीक है. तो अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन, ये प्रूफ, ये मेरे को स्प्रिंग को बोलना है, स्प्रिंग सिक्योरिटी को बोलना है कि इसका ऑथेंटिकेशन होगी, इसको अलाउ करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट ए ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, आई नीड टू पुट इनसाइड दिस कंटेक्स्ट. क्योंकि सारे एंड पॉइंट इसी 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 में देख के चेक करते हैं कि ऑथेंटिकेट हुआ कि नहीं, राइट. सो आई विल कम बैक हियर एंड आई विल जस्ट शो यू that this is my security context. This is the important of the security context. Okay. I will wait for few minutes here, right. Just ask me your question. What is going on in your mind, where you get confused. I'll just repeat it because this needs to be understand very clearly, end to end, right. Don't think about the database कहाँ पे यूजर डिटेल्स है वो भूल जाओ. डेटाबेस वो यू नो हाउ टू डू दिस थिंग. जस्ट फोकस ऑन द बेसिक सिक्योरिटी कि आपको एग्जैक्टली लॉजिकली इफ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस, व्हाट इज द starting point of spring security, what is the end point of spring security. After that, when controller will get the control. Okay, just I will pause for few seconds, just think about it. Where you get confused, let me know. ठीक है. बोलो, क्लियर है. एग्जैक्टली वी नीड टू डू इट मैनुअली टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे वो करता है. तो बेसिकली व्हाट आई वाज दिस डायग्राम, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ऑथेंटिकेशन से हम एक ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन यहाँ से दिए थे, राइट. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से. ये जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है, ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट एक्चुअली सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में, दैट्स व्हाट आई वाज, मैं शायद ये बोल रहा था कि ये जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है ये उसके बाद सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में ऐड हो जाता है. ये दिस इज डन बाय स्प्रिंग सिक्योरिटी. अगर किसी को उस ऑथेंटिकेशन की एंड पॉइंट आपका प्रोसेस, मतलब उसके बाद आपका एंड पॉइंट जो भी है, जो भी कंट्रोलर है, सर्विस है, उसमें कंट्रोल जाएगा. एनीवेयर इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन, या तो यूजर नेम या कुछ भी चाहिए, you can access that authentication object using the spring context holder. ठीक है. ओके. अभी हम सब कुछ खुद करने वाले हैं.
we are going to implement everything. Authentication provider को जब भी authenticate कर दोगे, so it should add it, but now we are going to do it manually. ठीक है? Everyone clear? अंजलि, कहाँ पे कंफ्यूजन है? जस्ट यू कैन रीइटरेट, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? ओके, एक बार मैं just you know I'll just recap one more time. Okay, I know that this will happen, so don't get confused कि ये है, but if you think in a simple manner then you will get understand. मैं बताता हूँ क्या होता है. So आप कोई भी एक यूजर नेम में ओके, सो एवरीवन, स्नेहल इज दैट ओके? मैं रिकैप करूँ है, समरेश, एवरीवन इज फाइन? ठीक है, अभी रिकैप करते हैं, पहले से रिकैप करते हैं. ठीक है, सो हमने क्या किया अभी तक किया है. सो हमारे पास जो एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन में हमने इनिशियली जो किया था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी जस्ट pom.xml में ऐड कर दिया, तो इट इज बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन, मतलब बाय डिफॉल्ट सिक्योरिंग ऑल द एंड पॉइंट. ओके, तो उसके लिए हमको यूजर नेम पासवर्ड क्या देना है? यूजर नेम शुड बी यूजर एंड पासवर्ड शुड बी व्हाट इज बीइंग प्रिंटेड देयर. ठीक है, उसके बाद हमने ये डायग्राम पे आया था कि दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ ए स्प्रिंग सिक्योरिटी, हाउ इट वर्क्स. आप कोई भी स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर यूज करते हो, सो व्हाट स्प्रिंग सिक्योरिटी डज, it is taking your username password, right, and it is creating one authentication object. ठीक है, वो authentication object को create करता है using the authentication filter. filter कैसे काम करता है explain, right? filter is a like intercept. उसमें आप अगर application context में filter add कर देते हो, तो वो क्या करता है, वो आपको वो फिल्टर का एक मेथड रहता है, डू फिल्टर इंटरनल फिल्टर या डू फिल्टर इंटरनल. उसमें आप क्या करते हो, आप 3 पैरामीटर होते हैं. एक होता है तुम्हारा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड फिल्टर चेन. आप उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते, वो वॉइड होता है, उसमें कुछ रिटर्न नहीं आता है, बट उसमें क्या होता है, जस्ट जब भी रिक्वेस्ट जाएगा वो फिल्टर के पास एक्सेस जाएगा. फिल्टर के अंदर आपको जो करना है करो, आप कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ रिक्वेस्ट में कुछ ऐड कर सकते हो, रिस्पॉन्स में कुछ ऐड कर सकते हो. आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सिंपली प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट. सो ये एक बेसिक फिल्टर, एक मतलब कोई भी अगर वेब एप्लीकेशन जावा बेस्ड का है या सबलेट बेस्ड है, तो ये एक बेसिक फिल्टर का ऑथेंटिकेशन है, मतलब बेसिक फिल्टर का इम्प्लीमेंटेशन है. स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज दैट filter concept and it take your data, that is the username password, right, and it create one object, right, that is the authentication object. उसके बाद उसमें एक दूसरा एक मेथड होता है, जो दूसरा एक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम नाम दें ऑथेंटिकेशन मैनेजर. ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास क्या होता है, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होता है. ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन टाइप, किस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है ये, उसके हिसाब से ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल राउट दैट ट्रैफिक टू दैट स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर. इफ यू कैन थिंक, जस्ट रिकैप, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, उसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑथेंटिकेट और एक होता है मैं व्हाट वी इम्प्लीमेंटेड सपोर्ट. एग्जैक्टली, कि ये कौन सा मेथड को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट्स. ओके, यहाँ पे आप बेस्ड ऑन द कि ये कौन सा सपोर्ट करता है, इसमें जैसे मैंने दिए यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को सपोर्ट करता है. तो अगर आपका ऑथेंटिकेशन में यूजर नेम पासवर्ड आएगा, तो it will create that username password authentication, and this authentication provider will be used by authentication manager when you are doing the authentication. ठीक है, अभी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास आया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में जो ऑथेंटिकेट है उसमें ऑथेंटिकेट होता है. ऑथेंटिकेट का पर्पस क्या होता है कि आपके पास जो डेटाबेस में या कहीं पे भी, राइट, आपका जो भी यूजर डिटेल्स है, उस यूजर डिटेल के साथ इस ऑथेंटिकेशन में जो भेजा है इसको मैच करो.
अगर सही लग रहा है तो ठीक है, इफ इट इज ट्रू मेक दिस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट एज इज ऑथेंटिकेटेड। उसके एक मेथड है जो रिटर्न ट्रू करना चाहिए, एंड जो भी आपका यूजर डिटेल्स का ऑथोरिटीज है वो सारा ऑथोरिटीज कॉपी करके ये मेरा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो। हो गया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का काम। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर उसके बाद क्या करता है, इट जस्ट द ऑथेंटिकेशन जो ऑब्जेक्ट है जो ऑथेंटिकेटेड हो गया उसको सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर के अंदर डाल देते हैं। खत्म। अभी उसके बाद सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में डाल दिया, उसके बाद कोई एंड पॉइंट में जब एक्सेस आएगा उस एंड पॉइंट में पहले चेक करेगा कि जो भी सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है यस है, उसमें क्या इज ऑथेंटिकेटेड है, इज ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, आई विल गिव यू द एक्सेस। इफ इज ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आई विल नॉट गिव यू द एक्सेस। ओके, just remember the contract else right it will be mess up। हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, राइट। नाउ इफ यू गो थ्रू द प्रोजेक्ट राइट देन यू विल मेक यू अंडरस्टैंड कि मैंने जैसे यूजर डिटेल सर्विस, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि लोड यूजर बाय यूजर नेम। अब यूजर को डेटाबेस में रखो, कहीं पे भी रखो, इस मेथड का रिटर्न में एक यूजर डिटेल्स आना चाहिए, राइट। इसमें यूजर एज ए इनपुट जाएगा यूजर नेम, वहाँ से यूजर डिटेल्स आना चाहिए, राइट। सिंपल वन थिंग। अभी मैं जाता हूँ कस्टमर पासवर्ड एंड कस्टम पासवर्ड एनकोडर, ये मैं बोला है कि इसमें दो मेथड होना चाहिए, एक होता है एनकोड, एक होता है मैचेस, राइट। अब एनकोड का जो है मैंने हैश SHA512 एल्गोरिदम लगाया, सो दिस इज माय राइट थिंग्स विच इज मतलब ये मेथड है, ये आप कैसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जस्ट टू के बेसिक मेथड, ठीक है, टू एनकोड द पासवर्ड and when custom user detail service will use this password encoder, sorry, custom authentication provider will use this password encoder to match कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यूजर डिटेल्स में जो मेरा स्टोर्ड है उसके साथ पासवर्ड और ये जो यूजर ने पासवर्ड दी वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। देन इट विल कम टू द कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। इसमें ऑथेंटिकेट मेथड होगा। ऑथेंटिकेट में आपको क्या करना है, जो भी ऑथेंटिकेशन आया है इस ऑथेंटिकेशन का नेम लेके आपको पहले यूज़र डिटेल सर्विस को कॉल करना है, वहाँ से यूज़र डिटेल्स आएगा। अगर यूज़र डिटेल्स आता है तो पासवर्ड एनकोडर यूज़ करके उसके साथ मैच करना है। मैच करने के बाद आई विल रिटर्न वन ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट विथ ऑल द ऑथोरिटीज़ एंड आई शोड यू कि अगर आप ये वाला 3 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, it automatically set that is authenticated method as a true। तो इसीलिए हमने यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ से हटा दिया क्योंकि पासवर्ड अब नहीं चाहिए, और उसका क्या क्या ऑथोरिटीज ये कॉपी कर दिया। ये ऑथेंटिकेशन कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का काम है। ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जब मैं इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी फ्लो में इसी ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में डाल देते हैं। एज ए रिजल्ट इफ वी गेट एंड सिक्योरिटी कंटेक्स्ट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। इट विल बी इनसाइड द सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन। दिस इज माई ऑथेंटिकेशन। दिस ऑथेंटिकेशन इज हैविंग ऑल द फील्ड। इसमें मैंने गेट प्रिंसिपल टू स्ट्रिंग किया तो मेरे को यूजर नेम दिखता है, ओके। एंड ऑन द अदर साइड सिक्योरिटी यूजर डिटेल्स होता है, यूजर डिटेल्स का ये सारा इम्प्लीमेंट है। गेट ऑथोरिटीज को रिटर्न करना चाहिए, गेट पासवर्ड, गेट यूजर नेम, इज नॉन एक्सपायर से ये सारे इम्प्लीमेंट हमने किया है, राइट। तो इसमें हमने एक यूजर नेम पासवर्ड ऑथोरिटी लिया है, राइट। सो दिस इज द ऑथोरिटीज आई विल गिव, दिस इज द पासवर्ड आई विल गिव, दिस इज द यूजर नेम आई विल गिव, राइट। एंड इफ आई वांट आई कैन स्टोर दिस ऑब्जेक्ट इन ए डेटाबेस। सारे यूजर नेम का एक डेटाबेस में रख सकता हूँ, ओके। यस और नो? ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जस्ट टेल मी, लेट मी नो।
देखो भाई, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आई कांट हेल्प इट अंटिल, मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इफ यू थिंक दैट, मतलब ये जो मैं जिस तरह से फ्लुएंटली बोलना पा रहा हूँ या फ्लुएंटली आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, you might think that it is very easy for me, but it was very difficult for me initially, right? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, right? I spent the time, I read it, right? कि चलो देखते हैं होता क्या है, and it is a really interesting topic because as a application developer you should understand the security aspect, नहीं तो कोई भी हैकर आके आपको हैक करके चला जाएगा आपके एप्लीकेशन को, right? So this is a complex thing, right? Because if everyone understand this part, or everyone in a simple manner, then anyone can hack your application, right? So it is a complex topic, but yeah, if you logically conclude, right, it's a very simple. Okay, ठीक है? क्या लग रहा है, ये बस की बात है कि नहीं है? ठीक है, राइट? ओके, चलो अभी एक काम करते हैं, वी हैव सो एनी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन करते हैं, सो आई थिंक वी माइट नॉट हैव टाइम टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो मैं एक दिन में पूरा करना चाहता हूँ, राइट? दैट नो डेमो प्रोजेक्ट आई वाज डूइंग, राइट? और वी कैन डू पार्शियली। बोलो, कुछ क्वेश्चन है? एनीवन नीड्स एनी बुक? इसके लिए किसी को बुक पढ़ना मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैं बुक से पढ़ लूँगा, टू नो मोर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग? ओके, ठीक है। बाकी आई थिंक हाई लेवल पे आपको ये सब चीज़ अच्छा, मतलब यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग, बट एक चीज़ आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जब भी आपका रियल टाइम एप्लीकेशन बनाओगे, सो तब आपको देख के पता चलेगा कि व्हाट्स दे आर गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी द आइडियल वे। बिकॉज मैं इसीलिए इनिशियली बोल रहा था कि देखो, आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। मैं एक टोकन के हेडर में एक टोकन दे दूंगा कि तुमने अगर ये टोकन मेरे को भेजा है तो मैं आपको एक्सेस दूंगा, सिंपल थिंग, नथिंग यू नीड टू जस्ट, यू नीड टू ऐड ए फिल्टर, राइट? कि आपके पास एक टोकन है, ये टोकन का नाम ये होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको ये दे दूंगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? एनीवन कैन एट प्रीएम द टोकन, एनीवन कैन एंटिसिपेट द टोकन, हो गया, तुम्हारा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया। ओके, इफ यू थिंक दैट, सो यू नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग, हु इज द यूजर। अब यूजर को अगर सिस्टम में मतलब आपका सिस्टम में पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप टोकन बेस्ड करते हो इनिशियली, राइट, तो विदाउट एनी यूजर इन द कंटेक्स्ट, देन आपका क्या हो जाता है कि कोई भी आपको टोकन यूज कर सकता है, कोई भी यूजर, राइट? तो एक यूजर नेम वाला आया, यूजर नेम जब आया उसके अंदर ऑथोरिटीज आते हैं, राइट? ईच एंड एवरी लेवल यू हैव द मल्टीपल टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर एनीवन कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, इसको तो सिंपल कर सकते हैं। यस, वी कैन डू इट सिंपल, बट विद दैट सिंपल यू कांट स्केल योर एप्लीकेशन। क्यों बोल रहा हूँ? आपका जो मैंने अभी जो सैम्पल प्रोजेक्ट दिया, ये सैम्पल प्रोजेक्ट जो भी है, दो टाइप ऑफ लॉगिन है, एक होता है यूजर नेम पासवर्ड, एक होता है यूजर नेम ओटीपी, राइट? तो आपको दो टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर चाहिए, राइट? यस और नो? जो ऑथेंटिकेट करेगा, जिसका ऑथेंटिकेट मेथड होगा, एंड एक लेगा यूजर नेम पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन, दूसरा लेगा यूजर नेम ओटीपी वाला ऑथेंटिकेशन, राइट? वी नीड टू इम्प्लीमेंट टू सेपरेट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। यस और नो? यस,
ठीक है, अभी दो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आपको रखना है एक ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंडर, राइट? सो हाउ वी कैन डू दिस थिंग, ओके? इसीलिए इतना लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है कि पहले फिल्टर में आप डालो, उसके बाद मैनेजर को दे दो, मैनेजर नो कि उसके कॉन्टेक्स्ट में कितना प्रोवाइडर बैठे हैं, वो प्रोवाइडर के पास जाएगा, प्रोवाइडर के अंदर एक ऑथेंटिकेट मेथड होता है। अगर आपका काम कंप्लीट ऑथेंटिकेशन है, मतलब आपका एंड हो गया, सो यूज़र नेम पासवर्ड में जैसे क्या होता है कि यूज़र नेम पासवर्ड जब देते हो तब उसका जो ऑथेंटिकेट होगा इट शुड नॉट मेक यू ऑथेंटिकेट, क्योंकि वो मल्टी फैक्टर है, तो एक फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद अब आपको मैं सिस्टम का एक्सेस नहीं दे सकता हूँ। तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट वापस होगा उसका ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में, दैट इज नॉट इज ऑथेंटिकेटेड, उसका ट्रू नहीं होना चाहिए एंड ऑथोरिटीज में उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं उसी ऑथेंटिकेशन को सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में डाल दूंगा, तो एनी एप्लीकेशन if you are trying to reach to the hello with that authentication object, you will not get the access because your authentication is not yet authenticated. Okay. अभी पासवर्ड में जाते हैं, सॉरी ओटीपी में जाते हैं, ओटीपी सेम चीज़ है, उसका जो प्रोवाइडर होगा वो प्रोवाइडर के अंदर एक इम्प्लीमेंटेशन करूंगा मैं, उसमें ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑथेंटिकेशन मेथड है, उसके अंदर उधर भी मैं ऑथेंटिकेट नहीं बोल सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि मैं आपको यूज़र नेम ओटीपी में एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक्सेस दे रहा हूँ क्या, आपके पास एक टोकन होना चाहिए। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं आपको हेडर में एक टोकन ऐड करके वापस दे सकता हूँ कि ये टोकन लो, राइट? बट आई विल नॉट मेक यू ऑथेंटिकेटेड। अभी आप नेक्स्ट टाइम जो टोकन लेके आओगे, देन आई विल टेक द टोकन, आई विल अंडरस्टैंड कि ये टोकन मेरा सिस्टम से इशू हुआ कि नहीं, ठीक है? अगर मेरा अंदर जो टोकन है उसके साथ मैच करता है, देन आई विल मेक यू ऑथेंटिकेटेड कि आप ऑथेंटिकेटेड हो। अब अभी एक्सेस यूजर नेम मतलब हेलो एंड पॉइंट को हिट कर सकते हो, ओके? बोलो बोलो। एग्जैक्टली, मतलब सेम टोकन होगा, मैच करेगा, दैट्स द थिंग, आई लेट यू नो, ओके? मैं थोड़ा उसमें और जाता हूँ। तो अभी अच्छा टोकन वाला एक एक चीज़, टोकन वाला थोड़ा, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर देता हूँ, देन वी विल एंड अप टुडे, राइट? ओके, सो आपका क्वेश्चन ये कि हमारा टोकन कहाँ कहाँ स्टोर रहेगा, राइट? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? और हम्म हम्म एग्जैक्टली, यू कैन स्टोर इन ए डेटाबेस ना, आप सर्विस कॉल करके एक डेटाबेस में स्टोर कर लो। एग्जैक्टली, नाउ यू रियलाइज दैट्स अ प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम कि आपका टोकन सेम हो गया। अब डेटाबेस में अगर डेटाबेस किसी ने चुरा लिया तो गया, तो आपको क्या यूज करना है, राइट? देन दैट्स कम इन द JWT। ऐसा वैसा टोकन नहीं कि जहाँ पे मैंने जस्ट लिख के इनिशियल करके छोड़ दिया कि ये लो ये टोकन लेके जाओ उधर जाओ, ऐसा नहीं है, राइट? इट शुड बी ए JWT। JWT में क्या होता है, थोड़ा हाई लेवल पे बता देता हूँ, डोंट, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। इसमें सिंपल चीज़, आपको किसी चीज़ को अगर इन मतलब बहुत सिक्योर्ड रखना है, सो दैट अदर पर्सन कांट सी इट और कांट, इफ यू मॉडिफाई, राइट, यू कैन डिटेक्ट इट। इसके लिए एक मेथड देता है JWT। आपके पास कोई भी JWT का तीन पार्ट होता है, एक होता है हेडर, एक होता है बॉडी, सॉरी, और एक होता है सिग्नेचर, ठीक है? टोकन के अंदर आप एक कुछ भी डालो, हेडर में जस्ट व्हाट इज द एल्गोरिथम यू आर गोइंग टू यूज, राइट, टू क्रिएट द सिग्नेचर, एंड बॉडी में व्हाट इज द बॉडी, एंड सिग्नेचर जब बना होगा तब आप क्या करोगे, हेडर और बॉडी का जो पार्ट है,
राइट, उसको आप एनक्रिप्ट करोगे, एंड एनक्रिप्ट करने के बाद आपको एक सिग्नेचर, सो एनक्रिप्शन के लिए आपको एक की चाहिए, राइट, देयर विल वन की इज नीडेड। वो की यूज करके आप उसको साइन करोगे, की यूज करके आप उसको एनक्रिप्ट करके, एनक्रिप्टेड जो स्ट्रिंग है दैट इज द सिग्नेचर। आप फिर उसके बाद क्या करोगे, हेडर, बॉडी और सिग्नेचर को वापस भेज दोगे। की आपके पास है, आपके पास ये टोकन स्टोर नहीं है, आपके पास ये टोकन क्या बना ये स्टोर नहीं है, क्योंकि ये टोकन विल बी different. You can store the token, I'm not saying कि token store नहीं है, you can store the token, but assume that you don't have the token, but you know कि की क्या है, ठीक है। उसके बाद यूजर, क्योंकि अलग अलग यूजर का अलग अलग टोकन होना चाहिए, आप अगर टोकन को हार्ड कोडेड करोगे या सेम कर दोगे दैट्स अ प्रॉब्लम है, एज यू टोल्ड दैट यू, आपका सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गया। दो एप्लीकेशन यूजर है, मैं अगर डेव टूल में जाके देख ले आपका टोकन, तो मैं भी यूज कर सकता हूँ वो टोकन, राइट, दैट्स ए सिंपल थिंग, सिंपल प्रॉब्लम। बट मैं अगर एक टोकन दिया, राइट, उस टोकन में मेरा यूज़र का सारे डिटेल्स है, सब कुछ है, राइट, उसके बाद मैं अगर कुछ बॉडी में चेंज किया, राइट, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट यू एक्सेस, मेरा सिग्नेचर मैच नहीं होगा, क्योंकि आप तो बॉडी चेंज कर दिए बट आप सिग्नेचर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आपके पास की नहीं है, की मेरा पास है, ओके, यू कांट जनरेट द सिग्नेचर। नेक्स्ट टाइम जब आप वापस आओगे, मेरा पास की है, मैं, मेरा पास की है, तभी मैं इसके अंदर को डेटा को निकल सकता हूँ, मतलब निकल तो सकते हो, बट आई विल फर्स्ट वेरीफाई दैट आपका की मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका की मैच हो रहा है, देन आई विल वैलिडेट दैट ओके दिस इज फाइन, दिस इज द टाइम लाइन, सो ये मैं एक्सपायर हो गया कि नहीं होगा, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन है मैं JWT से निकाल सकता हूँ, ओके। लॉजिकल लग रहा है कि ये चीज़ अच्छा है, मतलब सिक्योरिटी के लिए, सो दैट नो वन कैन एंटिसिपेट योर टोकन और एनीथिंग, राइट। ठीक है, ओके, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कल, आज थोड़ा, ओके, सो नाउ थोड़ा बहुत यू कैन जस्ट गूगल करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लो 1-2 घंटा, डोंट थिंक दैट कि ये इतना इजी टॉपिक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आई एम देयर टू गाइड यू, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा चीज़ में नहीं डाल हो कि आपको कुछ नहीं पता है, यू जस्ट व्हेन एवर देर इज सम स्प्रिंग सिक्योरिटी, जब बोलते हैं हम गूगल में जाते हैं, एक 3 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, अच्छा ये होता है गूगल सिक्योरिटी, तो बहुत ईजी है, बट हाउ अंडरलाइंग इट इज़ वर्किंग, राइट, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सो दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये जो प्रॉब्लम है, मैं एक सिंपल क्लासिक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। अभी इफ़ यू गो टू द प्रोजेक्ट पुणे मेट्रो, राइट, पुणे मेट्रो में जो भी है वहाँ पे द मेन प्रॉब्लम इज, जो ऑथराइजेशन हो रहा है, राइट, API लेवल पे, दे नीड द JWT टोकन, दे डोंट नीड द सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, राइट। नाउ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, आप इम्प्लीमेंट गूगल में 3 मिनट का वीडियो देखने के बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट अगर कुछ इशू आएगा, यू माइट नॉट एबल टू हैंडल इट, एंड नो वन इज देयर टू जज यू आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, but if you understand the spring security end to end step by step, then you can easily do the things, okay। चलो बहुत ज्ञान दे दिया, लेट्स मेक इट थोड़ा लाइट वेट करते हैं, सो ठीक है, आप पुराना जो प्रोजेक्ट है ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, देन यू विल गेट द आइडिया कि क्या क्या हो रहा है, ओके। देन लेट्स मीट टुमारो सेम टाइम, यस, कल से नहीं आओगे और हो गया भाई, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा तो नहीं है, ओके। अंजलि, ठीक है, जैसे प्लान,
चलो